Yes, Gordon, अपने describe about yourself in 2-3 lines. Sir, myself Gordon Jat. I am from Devpur district of Rajasthan. I have done my graduation from University of Rajasthan in 2018 in physics, chemistry, and mathematics. Currently, sir, I am pursuing masters in political science. And sir, in CAPF, this is my third attempt. My interest playing online chess game, playing kabaddi and cricket. Okay. So have you appeared for the interview of CAPF earlier? Yes, sir, in 2019 and 2020. So where did you miss? Sir, in both the attempt, I missed in written part. Okay, in paper 2 or paper 1? Sir, combined marks are less in paper in 2019. The marks in paper 2 was less in 2020 in paper 1. Okay, okay. How many marks did you score during interview? Sir, in my first attempt, I scored 89, and in second, I scored 87. In interview also, I was below average. Okay, okay. You need to score more than 100 marks in interview. Yes, sir. How are you prepared now to score more marks in interview? What all efforts you have made so far so that your interview goes in an impressive way? Sir, I started preparing early this time, and I am giving mocks, and sir, I am also preparing my content about my district, about my subject, about my optional in political science and current affairs. So I am preparing this time. From where you are pursuing political science post graduation? Sir, from University of Rajasthan. Okay, why you have switched over from science to arts? Sir, since I have done graduation in 2018, since then I have been preparing for civil services. Sir, I have taken optional political science. So I think that I should be having a degree in political science since I have read much about political science. So that is why I am pursuing masters. Okay. Do you think that by doing post graduation in political science, we can qualify the optional of political science in civil services? Sir, merely degree. I think merely degree having degree does not make much difference. But having the substantial knowledge about the subject and how to present it. So these two components. Because these subjects for civil services require knowledge from 9th, 10th, 11th, 12th onwards. So Yes, sir. we suddenly jump to the post graduation level and we forget the foundations. So therefore it becomes difficult to answer the questions correctly. Yes, sir. But in my case, I have studied from 6 onwards, and later on I jumped to masters in political science because I have uh, knowledge about that subject, and I also found interesting the political science. Okay. So let us have first question of political science. Can governor of a state sack minister of a state? Sir, this debate is in news. But sir, according to me, governor without aid and advice of CM could not sack a minister. Why advice of minister is essential for sacking a minister? Because sir, since in India we have parliamentary democracy and in state level the system is because the council of minister having majority in the house, so they represent the people. So that is why governor cannot sack minister without advice of CM. On what occasion governor can sack ministers? Sir, there may be
multiple occasions. For example, if CM advised the government to do so. Second one, if the government lacks majority in the house. So Okay. What for Jaipur, Rajasthan? Jaipur in Rajasthan is famous for. Describe. sir, Jaipur is capital city of Rajasthan, and it is situated in northeastern part of Rajasthan. It was established by Maharaja Savai Jai Singh II in 1727, and it is famous for multiple tourist places. For example, in Jaipur there are UNESCO World Heritage sites like Amer Fort is there, Hawa Mahal, Jantar Mantar, Albert Hall Museum, and sir, Jaipur is also part of Golden Triangle, which includes Delhi and Agra also. And sir, Jaipur is also known as Pink City. Okay. What do you understand by palace on wheels? Sir, Palace on Wheels is a program of government of Rajasthan. Sir, it is government of Rajasthan or government of India. I don't know about it. But sir, Palace on Wheels is a railway program under which tourism is promoted. So all the tourist circuits or all the tourist places, important tourist places, are covered in this. Palace on wheels is a luxury train which runs from Delhi to Jaipur, to Ajmer, to Jaisalmer, Jodhpur, and all the Udaipur, etc. These are the cities covered. Basically, it provides luxurious food and luxurious drinks. So it is a costly project. That is why it is known as Palace on Wheels. Mostly foreign tourists are attracted towards it. Thank you, sir. Recently, Rajasthan government has switched over to old pension system. Do you think that it is a political decision or it is a good financial decision? I think, sir, the old pension scheme that the government of Rajasthan has switched to, I think it will have financial constraint or financial restriction on the exchequer. Sir, the government of Rajasthan has said that currently the government have to contribute around 9,000 crores for new pension scheme. So this after adopting old pension scheme, the government will not have to contribute, but that government will have to contribute after their retirement. So in short term, this step will create some physical space for the government, but in longer term, it will have more negative consequences, according to me, sir. As per your estimates, how many employees must be working in Rajasthan, state of Rajasthan, who will be governed by old pension system? Sir, there is a report that around 6% of total population are government servants that will be entitled to old What is the pension total scheme. population of And sir, Rajasthan? सर it is around 6 सर 6 करोड़ 65 लाख के लगभग है सर. तो 6% कितने हुए फिर? 36 lakh. 36 lakhs employees are to be given pension. So if we Yes, sir. calculate the cost of pension, it must be going in the million of dollars or million of rupees. Yes, sir. So it is not a financially good proposition. Yes, Which sir. other states have reverted to old pension system? Sorry, sir. और कौन-कौन सी भारत के राज्य हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया है? Sir, beside Rajasthan, as far as my knowledge goes, West Bengal West Bengal never adopted old new pension scheme. सर इसके अलावा तो दूसरे राज्यों के बारे में सर मुझे ध्यान नहीं है. ओके, अपडेट कर लीजिए आप अपने आप को. Yes, sir. Demand for old pension scheme has now started in Punjab also. Okay, sir.
Even the AAP government, which has not come to the power in Himachal, they have said that once we come to power, we will restore the old pension system. How can we put check on the freebies which are given by the political parties to the general voters? सर फ्रीबीज जो है सर, फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम सर दोनों के बीच में अंतर बहुत कम है. एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट कि both the terms are open to multiple interpretations and subjective also. So I think recently election commission has written to political parties that they should explain the procedure or the कि उनको ये प्रोग्राम बताना पड़ेगा कि वो कैसे जो भी पॉलिटिकल प्रोग्राम से उनको फंड करेंगे. तो सर मुझे लगता है कि फ्रीबीज को चेक करने का सबसे जो इफेक्टिव तरीका होगा कि लोग खुद से ये डिमांड करें और पॉलिटिकल पार्टीज भी एक 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 पॉलिटिकल विल दिखाए कि ये एज ए नेशन हमारे लिए सही नहीं है और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है उनमें ज्यादा निवेश करना चाहिए. Okay. What is your choice among the CAPF? Sir, my first choice is the CISF, then ITBP, then BSF, then CRPF and then SSB. Okay. राजस्थान में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं? Sir, starting from Sri Ganganagar, then Bikaner, then Jaisalmer, then Badmer. बाड़मेर. ओके. और इन डिस्ट्रिक्ट के साथ पाकिस्तान की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं? सर पाकिस्तान में जहाँ तक मुझे पता है एक तो सिंध. ओके. सॉरी सर, इसके अलावा मुझे पता नहीं है. मैप देखिएगा, लुक एट द मैप. ओके सर. एक ट्रेन चलती है जो बाड़मेर और पाकिस्तान के बीच में चलती है, उस ट्रेन का क्या नाम है? Sorry sir, I am not aware about that. I'll read into that. मुनाबाव थार एक्सप्रेस चलती है एक ट्रेन. मुनाबाव is in Badmer side and there is other station on the Pakistan side. The train runs between the two countries. Thank you sir. ऐसी ट्रेन और कहाँ चलती है पाकिस्तान के बीच में? सर एक समझौता एक्सप्रेस है सर, वो बाघा बॉर्डर के आसपास चलती है शायद. अटारी और वाघा. अटारी is with India and वाघा is with Pakistan. अटारी और वाघा के बीच में चलती है. ओके. जो आपके जैसलमेर हैं और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें पानी की क्या समस्या है आज? सर यहाँ पानी की कमी है सबसे पहले तो. इसके अलावा सर पानी की कमी को एड्रेस करने के लिए सर इंदिरा गांधी कैनाल यहाँ पर लाई गई थी. लेकिन सर इंदिरा गांधी कैनाल के भी कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं. जैसे सर एक तो सीम की समस्या है, दूसरी सर सॉइल सैलिनिटी बढ़ रही है. ओके. तो सर बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी लो इन दैट एरिया. ओके. ओके. ये जो राजस्थान का डेजर्ट है ये अरावली की तरफ शिफ्ट हो रहा है. अरावली आपका गुड़गांव से स्टार्ट होता है और ये जो है माउंट आबू तक जाता है. यस सर. तो इस डेजर्ट को रोकने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि ये डेजर्ट अरावली की तरफ शिफ्ट ना हो?
सर मार्चिंग ऑफ डेजर्ट को रोकने के लिए सर एक स्कीम है कि अरावली के आसपास एक वृक्षों की एक रेखा लगाई जाएगी, जो सर अफ्रीका से इसको लिया गया था कि ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका की तरह। सर एक तो बांस की ये जो हरित पट्टी को अपनाने की बात है। इसके अलावा सर मुझे और ध्यान नहीं है अलग इनिशिएटिव्स का। ओके, पढ़िए आप इसके बारे में। इट इज वन ऑफ द बिग प्रोजेक्ट ऑफ द करंट गवर्नमेंट। ओके सर। राजस्थान, गुजरात और पंजाब की सीमाओं पर ड्रोन की बहुत समस्या है, जिसके द्वारा पाकिस्तान यस जो है हीरोइन की स्मगलिंग, आर्म्स एम्युनिशन की स्मगलिंग करता है। इसके विषय में यस सर। आप क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? यस सर, रिसेंटली ये देखा गया है कि ड्रोन्स के द्वारा ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स एंड एम्यूनिशन का इंडिया में ड्रॉप सर ये बढ़ा है। और रिसेंटली सर बीएसएफ ने कुछ ड्रोन्स को शूट डाउन भी किया था। तो सर ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये लोगों को वेपन्स अवेलेबल कराती है, जो भी रोग एलिमेंट्स है। इसके अलावा सर ये जो ड्रग्स की समस्या है वो यूथ को भी इम्पेक्ट करती है। और सर इसको ट्रैक और प्रिवेंट करवाना भी एक मुश्किल भरा काम है, क्योंकि सर ड्रोन्स को डिटेक्ट करना एक मुश्किल काम है। हालांकि सर और गवर्नमेंट एंड बीएसएफ आर डूइंग देयर बिट, बट आई थिंक टेक्नोलॉजिकली वी हैव टू अडॉप्ट मोर ऑप्शंस। ओके, रशिया ने भी अभी ड्रोन्स को यूज किया की में अटैक करने के लिए। उन ड्रोन्स के बारे में आप क्या यस जानते हैं? सर, रशिया ने कामिकाजे नाम के ड्रोन्स को यूज किया है। वो ड्रोन्स ईरान से रशिया ने खरीदे थे। हालांकि ईरान ने इसको डिनाई किया है, बट देर आर सफिशिएंट एविडेंस दैट ईरान हैज प्रोवाइडेड ड्रोन्स टू रशिया। इन ईरान दे आर नोन एज शहीद ड्रोन। सर जो व्हाट काइंड ऑफ कामिकाजे ड्रोन ड्रोन है दीज आर? कैसे ड्रोन है ये? सर ये सुसाइड ड्रोन है। और सर ये छोटे होते हैं, लेकिन बड़े नंबर में, बड़ी मात्रा में एम्यूनिशंस को कैरी करके टारगेट को हिट कर सकते हैं। और सर इनको डिटेक्ट और प्रिवेंट करना मुश्किल काम है। और सर ये लार्ज नंबर ऑफ एक संख्या में एक साथ ये सर अटैक करते हैं। ये तो आप नेगेटिव यूज कर रहे हैं हम ड्रोन्स का। ड्रोन्स को पॉजिटिव किस प्रकार से सोसाइटी के भले के लिए यूज किया जा सकता है, बताएं। सर ड्रोन्स के पॉजिटिव बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर इन सिक्योरिटी एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस कैन सर्वाइलेंस बॉर्डर को मैनेज करने में किया जा सकता है। इसके अलावा सर ड्रोन्स का यूज करके सर प्लानिंग भी की जा सकती है किसी सिटी की। क्राउड कंट्रोल किया जा सकता है। और सर ड्रोन्स के अलावा सर रिसोर्स को जो मैपिंग है उसको भी किया जा सकता है। इसके अलावा सर एसेंशियल ड्रोन्स का यूज मेडिसिन एक कॉर्नर से ट्रांसपोर्टेशन। दूसरे कॉर्नर में भेजी जा सकती हैं। ब्लड यस कैन सर। बी अरेंज फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर यस to सर। avoid the traffic jam in cities like Bombay and Delhi. We can make use of drone. यस सर। पाकिस्तान में फिलहाल क्या डेवलपमेंट्स हैं? सर रिसेंटली पाकिस्तान में एक बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ आई थी। ओके, आपकी आवाज चली गई है। यस, दोबारा बोलिए। सर हाल ही में पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आ रही है। इसके कारण सर मलेरिया और अन्य बीमारियां वहाँ पर हो रही है। इसके अलावा सर पॉलिटिकल लेवल पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वहाँ पर एक है। इसके अलावा सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात देखें तो सर पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व लगातार कम हो रहे हैं और वो इकोनॉमिक स्ट्रेस से गुजर रहा है। ओके, ये इमरान खान बाईपोल इलेक्शन जीत गए हैं, 7 में से यस। 6 कंस्टिट्यूंसी में। इससे आप क्या यस समझते सर। हैं उनकी राजनीति में किस प्रकार की हलचल मची हुई है?
सर इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आउस्टर करने के बाद में सर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, आम जनता ने उनको ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि सर उन्होंने जो एंटी अमेरिकन रिटोरिक्स को प्रमोट किया है उसके आधार पर पाकिस्तान में लोग उनके साथ आ रहे हैं। और सर ये उनकी आई थिंक जो डेमोक्रेसी है सर उनके लिए एक पॉजिटिव खबर हो सकती है कि क्योंकि आर्मी इमरान खान के साथ अब नजर नहीं आती है, जो कि उनके आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कई स्टेटमेंट से सामने आता है। उसके बाद में भी सर इलेक्शन कमीशन वहाँ का एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में सफल हो रहा है। तो सर एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी न्यूज़ है। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया था कि हमारे यहाँ कहीं पर भी आतंकी हमला हो सकता है। ऐसा उन्होंने किसके लिए बोला था? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ओके। भारत ने बांग्लादेश के साथ मैत्री बढ़ाने के लिए कौन कौन से योजनाओं पर काम किया है? एक तो सर इनको मल्टीपल लेवल के ऊपर देखा जा सकता है, जैसे राजनीतिक स्तर पर भारत और बांग्लादेश कई इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कोऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन बीमस्टेक दे कोऑपरेट विद ईच अदर। सर दोनों के बीच में ट्रेड सर लगातार बढ़ा है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि वो बांग्लादेशी जो ट्रेडर्स है उनको कुछ प्रेफरेंस देंगे। इसके अलावा सर कनेक्टिविटी के स्तर पर दोनों देश लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में एक जो अगरतला से अखौरा अगरतला ट्रेन को ओपन किया गया था। इसके अलावा सर रिवर मैनेजमेंट के लिए भी सर एक कोशियारा रिवर को लेकर एग्रीमेंट हुआ था। तो बोथ द कंट्रीज आर डूइंग वेरियस थिंग्स। ओके। पिछले दिनों हमने जो है वीट भेजा था, जो कि वाया बांग्लादेश गुवाहाटी में पहुंचा। वो कहाँ से गया, किधर से गया, कुछ बता सकते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उसने जो नदी का मार्ग यूज किया, हमारे यहाँ पटना, वाराणसी पटना से गंगा से होते हुए और कोलकाता गया, कोलकाता से जो है वो साथ में फिर बांग्लादेश में चला गया, फिर बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र में आ गया और ब्रह्मपुत्र से जो है वापस गुवाहाटी आ गया। तो ये हमने ओके सर। वाटरवेज मार्ग जो हैं, ये भी हमने दोनों कंट्रीज ने आपस में एक्टिव कर रखे हैं। यस सर। उसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन भी है हमारी। उसके अलावा सबसे बड़ी है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो नॉन लीथल वेपन यूज करती है अगेंस्ट द इन्फिल्ट्रेटर स्मगलर्स ऑफ बांग्लादेश। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लीथल वेपन्स? सर नॉन लीथल वेपन्स आर वेपन्स दैट डू नॉट कॉज मच हार्म टू द टारगेटेड पीपल। उसमें सर टीयर गैस और ओके। सर जो रबर की बुलेट आ सकती है वो सर। ओके, दो। तीसरा? सर वाटर स्टन कैनन कैन ग्रेनेड्स बी होते हैं, कंसीडर। ग्रेनेड्स जो केवल धमाका करते हैं। दीज आर नोन एज स्टन ग्रेनेड्स। चौथा, पंप थैंक यू। एक्शन गन होती हैं, जो जो छोटी छोटी पैलेट्स रिलीज करती हैं। 12 बोर की जैसे गन होती है, उस प्रकार से गन से फायर किया जा सकता है। जो दूरी से करते हैं तो दुश्मन या जिस पे इन्फिल्ट्रेटर पे लगती है उसकी बॉडी में छर्रे घुस जाएंगे, इंजर्ड हो जाएगा, परंतु उसकी मौत नहीं होगी। परंतु अगर नजदीक से मारेंगे तो उससे भी मौत हो जाती है। तो हमने ये नॉन ओके लीथल सर। वेपन स्ट्रेटजी बांग्लादेश के साथ क्यों की? सर इसके जो कारण मुझे नजर आते हैं कि एक तो सर वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन थोड़े ज्यादा होते हैं, तो सर बीएसएफ के द्वारा कई बार ये सामने आता है कि कुछ लोग मारे गए हैं, तो सर दोनों के रिश्ते खराब होते हैं। इसके अलावा सर वहाँ जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है सर वो डेंसली पॉपुलेटेड है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग मिसगाइडेड होकर भी इधर आ सकते हैं। तो ये सर पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, ये बीएसएफ की एक अच्छा इनिशिएटिव है सर। ओके। आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एज असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया और आप उड़ी सेक्टर में तैनात रहे 2 साल। यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फायर लगातार चलता रहा।
आपकी बटालियन Yes. को अचानक जो है ट्रांसफर ऑर्डर दे दिया जाता है और आप मालदा सेक्टर में चले जाते हैं, बंगाल में, नॉर्थ बंगाल के अंदर, ठीक है, साउथ बंगाल में। Yes. वहां पे आपके ट्रूप्स को बॉर्डर पे डिप्लॉय किया जाता है। आप उनको नॉन लिथल स्ट्रेटजी के बारे में किस प्रकार से बताएंगे और कैसे स्विच ओवर करेंगे इन ट्रूप्स को, ताकि वो नॉन लिथल वेपन यूज करें और किसी की किलिंग ना करें, किस प्रकार से ब्रीफ करेंगे? सर सबसे पहले तो जवानों को और जो भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको नॉन लिथल वेपन्स के बारे में सर बताया जाएगा। और सर उनको कुछ दिनों की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी इसके लिए दी जा सकती है। और सर उनको जो ऑलरेडी वहाँ पर तैनात है उनके साथ में उनकी ड्यूटी को अरेंज किया जा सकता है, ताकि सर वो जो बॉर्डर को मैनेज करने में थोड़ी आसानी रहे। इसके अलावा और क्या ब्रीफ करेंगे उनको? और भी तो कुछ बताएं ना, ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए कि हम जो डर वाली जगह है वहां से अब शांति वाली जगह पे आ गए हैं। इसके अलावा सर वहाँ की लोकल ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जवानों को बताया जा सकता है। और सर ये भी बताया जा सकता है कि बीएसएफ के बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ बांग्लादेश के साथ क्या रिश्ते हैं। और इसके अलावा सर ये भी बताया जा सकता है कि अगर कोई मिस एडवेंचर होता है हमारी तरफ से तो इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर या हमारे देश के ऊपर एज ए होल आ सकते हैं। तो सर ये सब कुछ बताया जा सकता है। ओके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान में जो डीजी है उनका नाम बताएं। सर श्री पंकज कुमार सिंह आईपीएस। ओके। एसएसबी की फुल फॉर्म क्या है और इसका रोल एंड टास्क क्या है? सर एसएसबी स्टैंड्स फॉर सशस्त्र सीमा बल। सर ये मुख्यतः बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है अलोंग इंडिया, नेपाल एंड इंडिया भूटान बॉर्डर। इसके अलावा सर ये उस क्षेत्र की एक लीडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। इसके अलावा सर बॉर्डर गार्डिंग के अलावा सर एसएसबी को कई अदर टास्क भी दिए जाते हैं, जैसे सर एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी उसकी बटालियंस डिप्लॉय है। इसके अलावा सर जम्मू कश्मीर में भी एसएसबी काम करती है। इसके अलावा सर जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में दूसरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसएसबी काम करती है। इसके अलावा जो अलग जो भी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज है। ये आपकी प्रॉब्लम आ गई थी इंटरनेट में? सॉरी सर। कोई बात नहीं उसमें, मतलब चलो ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि एसएसबी अपनी इंटेलिजेंस किस प्रकार से गैदर करती है? उनके पास कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसके द्वारा वो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा सर। एसएसबी का जो है एक सिविल डिवीजन है। दे रिमेन इन सिविल यूनिफॉर्म, सिविल क्लोथ्स, एंड दे मिक्स अप विद द पॉपुलेशन ऑफ द country as well as border inhabiting country from across the border, and they gather the इंफॉर्मेशन। information by showing them dramas, by showing them tricks. Their main aim is to collect the intelligence. थैंक यू सर। What is the role and task of NIA? NIA is very popular these days in the newspaper. Sir, NIA stands for National Investigation Agency. It came into being after 26/11 attack in Mumbai. Sir, the main task of NIA is to investigate terror-related crimes, and sir, it is a national nodal agency for terror-related activities. Recently, sir, आपके there was amendment to. राजस्थान में कौन से हिस्से में छापेमारी एनआईए के साथ मिलकर पुलिस कर रही है? Sorry, sir, I am unaware about that. ये भरतपुर के जंगलों में जो है इंफॉर्मेशन है कि हथियार वगैरह काफी छुपे हुए हैं, तो ये जो है पिछले 2 दिनों से वहां पे छापेमारी चल रही है एनआईए और पुलिस की। Okay, sir.
Why Bharatpur is famous in Rajasthan? Sir, Bharatpur is situated in eastern part of Rajasthan. It is part of the larger Braj Bhumi. इसके अलावा सर भरतपुर में गना पक्षी विहार भी है जो रामसर साइट है। सर यहाँ पर कुछ किले भी हैं, जैसे सर डीग का किला, लोहागढ़ इज देयर। तो सर इन Okay, कारणों से फेमस है। ठीक है। अगर आप सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में या एसएसबी में, तो सबसे बड़ी चुनौती आप क्या समझते हैं आपके समक्ष आएगी? सर चुनौती तो सर नहीं कहूँगा सर, कुछ चैलेंजेस जैसे आएगी सामने आ सकते हैं। सबसे पहले तो चैलेंजेस सर को ये आ हिंदी में सकता है चुनौती कि बोलते हैं ना। इंग्लिश में चैलेंजेस बोलते हैं, हिंदी में चुनौती बोलते हैं। सॉरी सर, सर कुछ चैलेंजेस ऐसे आ सकते हैं कि सर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर हो सकती है। इसके अलावा सर डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डील करना पड़ेगा, तो सर ये तो इंटरेस्टिंग सबसे काम रहेगा बड़ी कि जो अलग अलग। चैलेंजेस हैं कि जो आपके ट्रूप्स हैं और आप हैं, ये एक रिमोट यस एरिया में तैनात रहते हैं और इनका अकेलापन होना, लोनलीनेस होना स्वाभाविक है। तो इसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे? सर, अकेलेपन को दूर करने के लिए सर जो भी जहाँ भी मेरी कंपनी रहेगी सर, वहाँ पर एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाने के लिए मैं काम करूंगा। इसके लिए यार सर गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कल्चरल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जिसमें सर लोकल डांस जैसे सर भंगड़ा या जो भी लोकल डांस है उनको करके सर मनोरंजन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सर जवानों की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा सकता है, ताकि वो बिना किसी डर के अपनी समस्याओं को ऑफिसर्स के सामने रख सके। और सर ऑफिसर्स को भी समय समय पर उनकी समस्याओं की जानकारी मिलती रहे, ताकि वो उनको एड्रेस करने के लिए पर्याप्त कदम उठाते रहे। ओके, इसके दूसरी अलावा सर चुनौती ये रहेगी कि जवान अक्सर घबराहट में या बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं और फ्रेट्रिसाइड भी हो जाता है, एक दूसरे पे गोली भी चला देते हैं। तो इस समस्या का निवारण के लिए आप क्या करेंगे? सर इस समस्या के निवारण के लिए सर उनकी जो मेंटल काउंसलिंग है वो की जानी चाहिए। इसके लिए सर कुछ एक्सपर्ट्स को भी हायर किया जा सकता है। इसके अलावा सर चूंकि ये देखने में आता है कि जो सीएपीएफ है उनके जवान उनको लंबे समय से छुट्टी नहीं मिलती है, तो सर एक ऐसा सिस्टम को इवोल्व किया जा सकता है ताकि उनको रोटेटिंग रूप से सर उनको पर्याप्त छुट्टी मिले। जैसे कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि एवरी सीएपीएफ जवान और ऑफिसर विल गेट मिनिमम 100 डे लीव इन ए ईयर। सो उन प्रोविजंस को सर इफेक्टिवली लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा सर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी फैमिली से लगातार कम्युनिकेट कर सके। आप कैसे ऐसे कदम कैसे उठा सकते हैं कि उनकी फैमिली वहीं पे आकर के रहे, बॉर्डर पे सीमाओं पर रहे या सीमा के आसपास रहे? ऐसे कदम किस प्रकार से उठाए जा सकते हैं? सर सभी की फैमिलीज को तो सर मुझे लगता है कि रखना ये एक नियर टू इम्पॉसिबल टास्क होगा। लेकिन सर बीएसएफ की एक स्कीम है इससे रिलेटेड, अतिथि गृह स्कीम, जिसमें सर वो न्यूली मैरिड कपल्स को सर बटालियन हेडक्वार्टर्स पर रखने के लिए उसमें हाउसिंग प्रोविजंस किया जाता है सर। तो इस प्रकार के जो हाउसिंग फैसिलिटीज है बटालियन हेडक्वार्टर्स पर या फिर नियरेस्ट सिटीज में, तो सर इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन किया जा सकते हैं। इसके लिए सर पूरी फोर्स को और सरकार से ये अनुमति लेनी पड़ेगी। सर मेरे स्तर पर तो मुझे लगता है ये काम संभव नहीं होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद। वी आर स्टॉपिंग योर इंटरव्यू।